أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ خیرہ سسٹرز. ہم اپنا اشارہ شروع کریں گے 7B. اس سے پہلے ہم تھوڑا سا اتخاذہ جو آپ کو بتانا چاہ رہی تھی سسٹر حفصہ، لیکن وہ سلائیڈ کے اوپر لکھنے میں تھوڑا سا آپ لوگوں کو پریشانی ہو رہی تھی. ٹھیک ہو گیا جی. ہمارے پاس ہے اختلافہ. اچھا جی، اس میں آپ نے یہ جو کوڈ ہے نا، آپ اس کوڈ کے نیچے زیر لگا کے خا لگا لیجئے. اگر کسی کے پاس پرانی بک ہے تو ہو سکتا ہے وہاں پر یہ زیر نہ لگی ہوئی ہو، یہ لگا لیں. اس سے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اس وزن پر آنے والے جو افعال ہیں وہ اختلافہ سے ہیں. تو کوڈ اس کے ذریعے ہوگا کہ حمزہ کے نیچے کسرہ یعنی کہ زیر ہے. اب ہم اتخاذہ کو اس پہ پورا کرتے ہیں. یہ آپ کو بتانا چاہ رہی تھی سسٹر حفصہ کے اخذہ سے اتخاذہ کیسے بنا. ٹھیک ہو گیا جی. ہم لے آئے یہ والا حمزہ جو اختلافہ والا، اور ایک حمزہ آ گیا اخذہ والا. ٹھیک ہو گیا. اس کے بعد وہی یہاں پر سوری تا آ جائے گی. ٹھیک ہو گیا. یہ اس کے ساتھ آ گیا، یہ اس کے ساتھ آ گیا. اس کے بعد آ جائے گی تا، پھر خا آ جائے گی، اور پھر زا آ جائے گا. یہ پورے برابر ہو گئے. ٹھیک ہو گیا جی. یعنی کہ یہ بن گیا ہمارے پاس اتخذہ. اتخذہ. اچھا جی، دو صورتیں ہو سکتی ہیں. یا تو اس کو ایسے ہی پڑھا جائے، لیکن عربوں نے مزید آسانی کیا کر دی، یہ جو ایک حمزہ تھا اس کو تا میں بدل دیا. یہ جو تھا اس کو بدل دیا تا میں. اب کیا بن گیا؟ اتخذہ. اور جب ایک ورڈ ہمارے پاس ساکن تھا، ایک ہمارے پاس متحرک یعنی کہ حرکت والا تھا، تو اس صورت میں کیا کرتے ہیں؟ تشدید لگاتے ہیں. اور ابھی یہ صرف اتنا نہیں ہے، ابھی ہم اسی باب افتعال پر کچھ اور تبدیلیاں بھی دیکھیں گے کہ ہوں گے تو وہ اسی باب پر، لیکن وہ ان کے شروع میں جو کچھ لیٹرز میں پڑھنا مشکل ہو جاتا ہے، وہ انشاءاللہ جیسے جیسے ہمارے اسباق میں آتے جائیں گے وہ ہم ساتھ ساتھ دیکھتے جائیں گے کہ سم ٹائم یہ بھی ہوگا کہ آپ کو یہ جو خواہ ہے یہ نظر نہیں آئے گی، سوری یہ جو تا ہے یہ نظر نہیں آئے گی. اس کی بجائے اسی لیٹر کو جو ایک اس کا شروع والا ہوگا اسی کو ڈبل کر دیا جائے گا. تو اتخذہ کے کیس میں ابھی آپ صرف اتنا یاد رکھ لیں کہ یہ دو حمزہ تھے اور دونوں ہی حمزہ تھے، اس لیے ایک کو سکپ نہیں کیا جا سکتا کیونکہ شروع ہم نے اس کو ای سے ہی کرنا ہے. اب اس حمزہ کو بنایا ہے تا. ٹھیک ہو گیا جی. اس کو تا بنایا ہے، باقی اسی طرح سے تخذہ. اور یہاں پر یہ بن گیا ہے اتخذہ. پھر یہ اگلی تبدیلی میں ہمارے پاس اتخذہ بن گیا. ٹھیک ہو گیا جی. اب جب ایک ہمارے پاس چابی آ گئی ہے تو اس کا مطلب ہے باقی پھر پورا ٹیبل اسی وزن پہ بنتا جائے گا. اتخذہ، اتخذو، اتخذتا، اتخذتو، اتخذتم، اتخذنا اور اتخذت. ابھی کے لیے آپ نے صرف یہ یاد رکھنا ہے
کہ اگر اختلاف والے ٹیبل میں ہمارا ایک اور جو ٹیبل نیا ٹیبل ہے وہ حمزہ سے شروع ہوگا تو اس حمزہ کو تا میں بدل دیا جائے گا. ٹھیک ہو گیا جی؟ آپ کچھ سمجھ آ گئی آپ کو؟ بہت سسٹر اس میں پوچھ رہی تھی یہ کمزور ہوگا پھر؟ نہیں یہ کمزور نہیں ہے کیونکہ اس کا ایک تو پہلے سے تھا روٹ نا لیٹر نہیں حمزہ. بدلنے, اس کے روٹ لیٹر یہی رہیں گے. یہ ہے آخازہ, اس کا کیا معنی پڑا تھا ہم نے؟ او آئی سی, اچھا اچھا اچھا. پکڑ لیا جائے, پکڑ لیا. پکڑا, اس کا بھی معنی وہی ہے, اس نے پکڑا یا اس نے لے لیا. ٹھیک ہو گیا, معنی اس کا بھی وہی ہے. یہاں پر اہتمام سے یعنی کہ اہتمام کے ساتھ میں اپنی پوری کی پوری طاقت لگا دی. اتخاذا اپنی اس کوششوں کا یہ میننگ پھر ہو سکتا ہے اس نے مضبوطی سے پکڑا, مضبوطی سے پکڑا بھی کر لیں, لیکن یہ کہ ان کے الفاظ جو الگ سے ہمیں انڈرسٹینڈنگ کے لیے تو ٹھیک ہے آپ لگا لیں, لیکن اس کو ترجمے میں لانے کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہو گیا, صرف آپ ترجمے میں سیم آئے گا اس نے پکڑا. اس نے پکڑا, ہاں جی ٹھیک ہو گیا. ٹھیک ہے, اب ہم اپنی سلائڈ شیئر کریں. یہ آگے جہاں جہاں پر یہ والی اختلاف والے آتے جائیں گے نا انشاءاللہ ہم سیکھتے جائیں گے ان کو. اسی طرح سے ہم کھلا کریں گے, اور ابھی یہ جیسے ہم نے یہ والا کھلا ہے نا, ابھی اس طرح کے اور جو آئیں گے اسے ہم مزید کھولیں گے, پھر ہمیں یہ مزید اچھے طریقے سے یاد ہوتے رہیں گے انشاءاللہ. سسٹر ایک دفعہ افتعال تو لکھ دیجئے. افتعال, اچھا جی, آپ پہلے لکھ کے دیکھا کریں جو ہمارے پاس ریفرنسز ہے نا, ہمارے پاس جو مصادر ہیں یہ ہمارے ریفرنس ہیں. ٹھیک ہے, اس پہ ہم نے کس کو اتارنا, فا عین لام کو, یہ والے ہم نے پورے کرنے ہیں اس میں. تو ہم کیا کریں گے, افتعال, افتعال تو دوسری طرح بھی عین جو میں نے ایسے لکھ دیا, یہ والا بھی, یہ میرا اکثر جیم لگنے لگ جاتا ہے. افتعال, ٹھیک ہو گیا. تفعیل, افتعال کا معنی کیا ہوتا ہے؟ فعلا کا کیا معنی ہوتا ہے؟ اس نے کیا. اس نے کیا. یہ سارا کرنے والا ہی معنی ہے. اس میں ہم کہہ دیں گے اہتمام سے کیا, جو بھی کام کیا, خیر کا کام کیا یا شر کا کام کیا, یہ کیا کیسے ہے, اپنی پوری کوششوں سے. ٹھیک ہو گیا جی. اب ہم اپنا لیسن پڑھتے ہیں. آج کا ہمارا انشاءاللہ لیسن ہوگا سورہ بقرہ آیت نمبر 51 سے لے کے 53 تک, یعنی کہ 3 آیات ہم آج کے لیسن میں کور کریں گے. ہمارا صفحہ ہے 7 اشارہ بی. ہم اپنے لیفٹ ہینڈ پر اپنا QC3 شروع کر چکے ہیں الحمدللہ, ایک پیج ہمارا کمپلیٹ ہو گیا. اب ہم اپنے 7ویں صفحے پر آ گئے, 7 پیج ہمارا شروع ہو گیا ہوا ہے. ایک اشارہ ہم پڑھ چکے, آج ہم نے اپنا اشارہ بی پڑھنا ہے انشاءاللہ. اچھا جی, یہ اسی طرح سے جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ 5 پیجز ہم نے پڑھ لیے ہیں QC2 میں, 5 پیجز QC3, 4 and 5. اس کا مطلب ہے QC5 میں انشاءاللہ ہمارا پہلا پارہ کمپلیٹ ہو جائے گا. ہدایت کس کے لیے ہے؟ متقین کے لیے. کافرین اور منافقین نے شک کیا, انکار کیا, ان کے لیے ہدایت نہیں ہے. پھر قرآن کی دعوت, چیلنج, مثالیں کافی ساری دی گئی. اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کا تذکرہ ہم نے صفحہ نمبر 5 پر پڑھا. ہم نے جب QC3 شروع کیا تو یہاں پر ایسی امت, ایسی قوم جس نے ہدایت کی قدر نہیں کی, بنی اسرائیل کے بارے میں پڑھ رہے ہیں. اور انشاءاللہ ہم یہ والے جو پورا کا پورا QC3, 4 اور 5 کا بھی جو شروع والے ہوں گے لیسن, جو ہمارے ہو سکتا ہے کہ شروع کے 3 پیجز ہوں, وہاں تک ہم بنی اسرائیل کا تذکرہ پڑھتے ہی رہیں. اس کے بعد انشاءاللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں سیکھیں گے, پڑھیں گے انشاءاللہ. اچھا جی, ہمارے اشارے ہیں. اچھا جی, فرعون سے نجات, 40 راتیں, بچڑا اور توبہ,
اور اس کے بعد ہے دکھاؤ اللہ کو. یہ 7ویں پیج کے ہمارے 2 اشارے ہم پڑھ چکے ہیں. آج ہمارا ہے 40 راتیں. ٹھیک ہو گیا. پھر اون سے نجات ہم پڑھ چکے ہیں. 40 راتیں. اچھا جی, اس کے جو مختصر اشارے ہیں, فرعون, 40, بچڑا, دکھاؤ. اچھا پورا ہی لکھ دیا گیا, دکھاؤ اللہ کو. تو پورا پورا اشارہ مجھے ویسے بھی آسان لگتا ہے کہ اگر پورا یاد کر لیں. فرعون سے نجات, 40 راتیں, بچڑا, توبہ, دکھاؤ اللہ کو. ٹھیک ہو گیا جی. پچھلی آیات سے کیا تعلق ہے اسے بھی ہم دیکھ لیتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے مسلسل بنی اسرائیل کو اپنی نعمتوں کی یاد دہانی کروائی, اور یہاں پر اب یہ نعمتوں کا ذکر جو شروع ہوا وہ اس کے بارے میں ہم پڑھ رہے ہیں کہ اس کے باوجود کہ کیا کیا ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے بے حساب نعمتیں ان کو عطا کی, لیکن انہوں نے کیا کیا, شکر نہیں کیا, بلکہ سوال پر سوال اٹھاتے گئے, جس کی وجہ سے ان کے اپنے لیے مشکلات آتی رہی. اسباق میں ہم دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ کی عبادت کی غرض سے حضرت موسیٰ علیہ السلام 40 راتوں کے لیے گئے تھے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی غیر موجودگی میں بنی اسرائیل نے بچڑے کی پوجا شروع کر دی, اور ان کے اتنے بڑے گناہوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا, اور معاف کرنے کے بعد ان کو اللہ تعالیٰ نے تورات بھی عطا فرمائی تاکہ وہ ہدایت پر رہیں. ہمارا بھی معاملہ یہ کہ اللہ تعالیٰ ہم پر بے تحاشا مہربانیاں کر رہے ہیں. ہماری بہت سی نافرمانیوں کے باوجود آپ دیکھیے, اپنے ارد گرد دیکھیے, اللہ تعالیٰ روز ہمیں بے تحاشا نعمتوں سے نوازتے ہیں, اور ہم کیا کرتے ہیں, نافرمانی کرتے ہیں, ناشکری کرتے ہیں. تو یہاں پر ہم نے کیا کرنا, اپنے لیے دعا کرنی کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نافرمانیوں سے بچا کر ہدایت پر رکھے, ہدایت عطا فرمائے, ہدایت نصیب فرمائے, اور شکر کرنے والے بنائے. قرآن کتنا آسان ہے آپ دیکھ لیجئے. آج ہمارے پاس ٹوٹل ہے 8 الفاظ میں ہے, اور ان 8 الفاظ میں سے 4 تو ایسے ہوں گے کہ جو اردو سے ملتے جلتے ہوں گے اور ہم ان کو استعمال بھی کر رہے ہوں گے, لیکن ہمیں ہو سکتا ہے کہ اندازہ نہ ہو. اب ایک مرتبہ ہی پوری کر لیتے ہیں. اچھا جی, اگر کچھ کہنا ہے تو میں تلاوت کرتی ہوں, اس کے بعد پھر کوشچن کر لیجیے گا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ ثُمَّ عَفَوْنَا عَنْكُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ. صدق اللہ العظیم. جزاک اللہ. اگر کسی کا کوئی کوشچن ہے تو کر لیں, پھر ہم آگے بڑھیں. اچھا جی, اب ہم نے کیا کرنا ہے, پہلے ترجمہ دیکھ لیتے ہیں, پھر ورڈ بائی ورڈ دیکھیں گے. اور جب ہم نے وعدہ کیا موسیٰ سے 40 راتوں کا, پھر تم نے بنا لیا بچڑے کو معبود, اس کے بعد جبکہ تم ظالم تھے. اچھا جی, اب ہم ایک ایک حرف پہ آ جاتے ہیں, ایک ایک ورڈ پہ. یہ ہے وا از, یہ کل ہم نے سیکھا تھا کہ اس کی وجہ سے فرق پڑ جاتا ہے. وا از وا ادنا, اگر میں آپ سے پوچھوں وا ادنا, کوئی ہم نے اس سے ملتا جلتا مزید فیہی کا فعل پڑھا ہے؟ وعدہ وعدہ ہوگا, بس یہ وا اس کی کا اسی کا حصہ ہے, یہ وا اور والا تو نہیں ہے. نہیں یہ وا اس کا حصہ, یہ کمزور ہے. آپ اس کو میں دوسری طرح لکھتی, پھر آپ کو مزید سمجھ آئے گی انشاءاللہ. جی ٹھیک ہے.
हासबा वाला अल्हम्दुलिल्लाह, मैं यही चाह रही थी कि आपको हाँ सबना हासबना। अच्छा जी, इसका माना भी है उसने वादा किया, और इसका माना भी है, सॉरी हम इसको वादना लिखते हैं, फिर समझ आएगी। तो क्या, वादा को हम क्रॉस करके उसने वादा किया, और यहाँ पे हम लिखेंगे हमने वादा किया, और इस वादना का भी है हमने वादा किया। ये वाला जो वादा है, ये जो वादा वाला वादा है, ये ऐसे है कि जैसे मैं आपसे वादा करूं और सिर्फ मैं वादा करूं, जबकि ये जो वाद आदा है, ये वादा ठीक है, वो खड़ी जबर जो होती है ना, वो अलिफ के कायम मुकामी होती है, वो लिखने में बाजुआ में ऐसे लगता है कि वो एक अलग चीज है, लेकिन नहीं तो ये जो खड़ी जबर है ना, इसका मतलब ये है कि यहाँ पर ये अलिफ ही था। ठीक है क्या? अब ये वाला जो वादा है ना, जिसमें कुछ ज्यादती है, अब ये ज्यादती इसके माना में भी आ गई। ये है दोनों तरफ से वादा करना, मैं आपसे वादा करूं, आप मेरे से वादा करें। ठीक है, इस वादे को हम क्या कहते हैं? इस वादे को हम कहते हैं मुआहदा। अब ये किसके जैसा है? क्या ये मुहासबा जैसा लग रहा है? बताइएगा। जी 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 अब क्या होगा? बेहतरीन। अब हमारा टेबल कंप्लीट हो जाएगा। वादा युआइदु युहासिबु की तरह, उसके बाद हासिब की तरह वाइद, फिर उसके बाद हमने कहा था मुहासिबुन। अब हम कहेंगे मुआइदुन, मुआदुन और मुआहदतुन। ठीक हो गया? ये थोड़ा सा आइन वाला पढ़ने में इस तरह से जरा मुश्किल लग रहा है, लेकिन इसकी हम प्रैक्टिस इतनी करेंगे कि इंशाल्लाह ये हमें याद हो जाएगा। अब ये जो मुआहिदा है, ये है दोनों तरफ से। अब जैसे हमने कहा कि बाब इख्तलाफा में एहतमाम पाया जाता है, यहाँ क्या होता है? यहाँ पर दोनों तरफ से शराकत हो जाती है, दोनों तरफ से शराकत। यानी कि अल्लाह ताला ने मूसा से वादा किया और मूसा ने वादा किया अल्लाह ताला से। अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को बुलाया कि मेरी तरफ आओ। ये हमने वैसे भी हमें पता ही है कि कलीमुल्लाह है, अल्लाह ताला से बातें किया करते थे। तो अल्लाह ताला ने 40 रातों के लिए बुलाया, तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने भी जाने का वादा किया, मुआहिदा हो गया ये। वाइज़ वाअदना मूसा, और हमने वादा किया मूसा से अरबाईना। अरबाईना जो है, ये हम कुरान पाक में जब पहला वाला हिस्सा पढ़ लेते हैं, उसको फिर हम क्या कहते हैं? हमने क्या कहाँ तक पढ़ लिया है? रुबा रुबा अब ये उससे मिलता जुलता लग रहा है, जी अरबाईना। अच्छा, तो ये अरबाईना, इसमें रुबा और उसके साथ जो 20 वाला मिलके वो बन गया 40, और ये आगे लैलतन, लैल, जिससे भी कुछ याद आता होगा, लैला, लैलतुल कद्र। लैलतुल कद्र। अब क्या हुआ? 8 में से देखिए बहुत सारे अल्फाज तो हमें आ रहे हैं, पता चल रहा है कि अच्छा ये कुछ समझे हुए कुछ ऐसे अल्फाज हैं जो हम उर्दू में यूज कर रहे होते हैं, हमें पता नहीं होता। सुम्मा, फिर या दोबारा, इसका माना अब आ गया हमारे पास इत्तखज़्तुम, ये जो हमने पढ़ा था, हमने पूरा टेबल किया। अब यहाँ पर उसी तरह से रूल अप्लाई हुआ है। अगर हम मीम के साथ इसको मिला देंगे तो हम पढ़ेंगे सुम्मत्तखज़्तुम, और अगर हम इसको तोड़ देंगे तो फिर हम कैसे पढ़ेंगे? इत्तखज़्तुम। इत्तखज़्तुम। क्योंकि ये हमज़ातुल वस्ल है। कल किसने कहा था ना कि हमज़ातुल वस्ल कहा जाता है जो मिलाते हुए गिरा देते हैं, लेकिन अलग जब हम पढ़े तो फिर हम इसको पढ़ते हैं। ठीक हो गया जी? इत्तखज़्तुम, तुमने बना लिया, फिर तुमने बना लिया, हमारे टेबल में से आ गया तुमने बना लिया। क्या बना लिया? इजल कहते हैं ना बनाने को, और सॉरी बछड़े को। बछड़े को क्या बना लिया? इजल जो होता है बछड़े को कहते हैं। और क्या बना लिया? ये ब्रैकेट में लिखा हुआ है माबूद। क्यों बनाया था उन लोगों ने? उन लोगों ने बनाया था जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम चले गए तो एक जादूगर ने वो बना के उनको कर दिया, थोड़ा सा गाफिल कर दिया, कि वो सारी नेमतें वो जो उनके साथ
फौरन से पेशतर वाला जो मामला हुआ था, वो जो समंदर में फिरऔन को गर्क किया गया, उसको भी भुला दिया उन्होंने। और उन्होंने क्या किया, वो सोने का एक बछड़ा बना लिया, फिर वो उसी की पूजा करने लग गए। मिम बादी ही, मिम हमारा वही जाना पहचाना जो हमने पूरा टेबल भी किया हुआ है, ठीक हो गया जी। इसके बाद है बादी ही, ये दो अल्फाज होने के, बादी और ही। उसके बाद, किसके बाद, यानी कि जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम चले गए थे, उसके बाद उन्होंने क्या किया, उन्होंने बछड़े को माबूद बना लिया। अच्छा जी, इसके बाद लिखा हुआ अंतुम ज़ालिमून, ये ज़ालिमून की बात क्यों की गई, क्योंकि अल्लाह ताला के सिवा कोई ये हक नहीं रखता कि उसकी इबादत की जाए, और शिर्क सबसे बड़ा गुनाह है। तो इन लोगों ने क्या किया, अल्लाह ताला के साथ शरीक कर दिया बछड़े को, यानी कि ये बहुत जुल्म था, ये जुल्म था कि अल्लाह ताला के साथ किसी को शरीक ठहराया जाए, बराबर ठहराया जाए। व अंतुम, यहाँ पर ये वही माना यूज हो गया, हालांकि भी कह सकते हैं, जबकि भी कह सकते हैं। हालांकि तुम थे जालिम, जालिम जी हमारा ज़लमा यज़लिमु बाब दुआत से आ जाएगा, और इसका ज़ालिमून इस्मुल फाइल है। अच्छा जी, वाइज, और जब वादना, कोई टुकड़ा नहीं करेंगे, वादना पूरा हमें पता चल गया कि हाँ सबना कितना है। मूसा अरबाईना लैला सुम्मा इत्तखज़तुम, ये सब अलग अलग है। अल इजल मिम बादिही, यहाँ पर हम दो टुकड़े कर लेंगे, वा को अलग करेंगे, अंतुम को अलग करेंगे, ज़ालिमु जबकि तुम थे ज़ालिमों में से। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम खुसूसी इबादत के लिए तूर नामी पहाड़ पर 40 रातों के लिए गए थे। तो बनी इसराइल और उनकी कौम में मौजूद एक जादूगर की चाल का शिकार हो गए। उन्होंने एक बछड़े की पूजा शुरू कर दी और अल्लाह ताला की तरफ से दिए गए सारे मौजज़ात और इनामात और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की तालीम को भूल बैठे। जी, किसने पूछा? वो जो जादूगर की बातें भी इस तरह से, अच्छा जी, वो इसकी बातों में इसलिए भी आ गई कि उसने दलील पेश की थी, उसने कहा था कि मुझे इब्राहीम अलैहिस्सलाम की पाँव की मिट्टी मिली है, तो मैंने उससे ये जो बछड़ा बनाया है, तो वो लोग उसकी बातों में आ गए। होता तो सब कुछ अल्लाह ताला की तरफ से है, लेकिन इसलिए बार बार कहा जाता है, बार बार बताया जाता है कि अल्लाह ताला से हिदायत की दुआ मांगनी है, कि हिदायत भी तब तक नसीब नहीं थी जब तक अल्लाह ताला हमें अता ना फरमाए, और जब तक हम मांगे ना। तो इन बातों को हमने इस तरह से नहीं देखना कि ये एक किस्सा था जो बहुत साल पहले हो गया और खत्म हो गया। इन चीजों में हमारे लिए अल्लाह ताला ने लेसन रखे हैं कि अल्लाह ताला की दी हुई नेमतों का शुक्र अस्सलाम करिए। वालेकुम और मैम, सॉरी मैं आपको डिस्टर्ब कर रही हूँ, प्लीज माइक म्यूट कर दें क्योंकि किसी के माइक से बहुत शोर आ रहा है और उनकी आवाज समझ नहीं आ रही। अच्छा जी, हम देख लेते हैं किसका माइक ऑन है। अच्छा जी, अगर आप लोगों को कुछ कहना हो तो हैंड रेज कर लिया करें, तो तब हम माइक ऑन कर लिया करें। हम छोटे छोटे बच्चे तो है नहीं कि हम बार बार आपसे कहेंगे माइक बंद करें तो सुन लें, ये करें। हैंड रेज करें। हो सकता है कि ये लेसन के दरमियान में आप बोलेंगे, मैं भी अपनी बात भूल जाऊंगी कि मैं क्या आपको बता रही थी। तो ये हम इन चीजों का हम ख्याल रखेंगे इंशाल्लाह। अच्छा जी, मैं आपसे बात कर रही थी कि उसने कहा कि मुझे जिब्राइल अलैहिस्सलाम के पाँव की मिट्टी मिली थी, उससे मैंने ये बछड़ा बना लिया। और हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम की शान ये कि वो अंबिया के सामने भी अपनी ज़ाहिरी हालत में नहीं आते थे ना। हम बहुत से ऐसे तफासिर में, अहादीस में पढ़ते हैं कि वो किस किस शक्ल में आते थे। तो अगर उसको अल्लाह ताला ने ये दिखाया तो ये भी एक मोजज़ा था, क्योंकि बनी इसराइल पे अल्लाह ताला ने मोजज़ात की बारिश की थी, बहुत मोजज़ात थे उनके लिए। होना तो ये चाहिए था कि अगर उसने देखा तो वो पूरी तरह से कायल हो जाता, अल्लाह ताला की इबादत करने में लग जाता, और दूसरों को भी इस बात पे बावर कराता, इस बात पे कि सब अल्लाह ताला की इबादत करेंगे, हम मूसा का इंतजार करेंगे, जो उन्होंने हिदायत दी उन पर अमल करेंगे। लेकिन उन्होंने इसके बिल्कुल उलट किया, बरखलाफ किया। अच्छा जी, शिर्क जैसे बहुत बड़े गुनाह को करने के बाद भी अल्लाह ताला ने उन्हें माफ कर दिया। ये एक वो भी तो है ना, इन्ना कला शिरकुन जुल्मुन अजीम, कुछ इस तरह से अल्फाज शायद मेरे आगे पीछे हो गए हो, कि शिर्क ऐसा गुनाह है जो नाकाबिले माफी है, और अल्लाह ताला ने उनको इसके बावजूद भी माफ कर दिया, यानी कि उस पे इतनी उन लोगों पे ब्लेसिंग थी अल्लाह ताला की, उन्होंने कदर नहीं की। अब हम एक हदीस लेते हैं। अच्छा जी, मैं देखना चाहती हूँ कि बुक में अगर अरबी है तो हम अरबी को देख लेते हैं साथ साथ। हाँ जी है,
है जी। हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया 7 मुहलिक गुनाहों से बचो। सहाबा ने अर्ज की या रसूलल्लाह वो क्या क्या है? तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आपके पास बुक्स हैं तो बेशक खोल लीजिए, हम इसको साथ साथ देख लेते हैं। अशिरकु बिल्लाह यानी कि अल्लाह के साथ शिरक करना, व सिहर दूसरा है जादू करना। इसके बाद है वक़त्लु नफ्सिल्लती हर्रमल्लाहु इल्ला बिलहक यानी कि नाहक किसी की जान लेना जो अल्लाह ने हराम किया हो। इसके बाद है वह अक्लु रिबा, रिबा कहते हैं सूद को, सूद खाना। वह अक्लु माली यतीम, यतीम का माल खाना। इसके बाद है वह तवल्ली यौमर रजफू, अगर मुझे ये सही सही नजर आ रहा है तो अच्छा, जंग के दौरान पीठ फेर लेना। ये वाला टेबल भी, तवल्ला वाला टेबल भी हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे। यहाँ पर है तवल्ली यूज हुआ है, ठीक हो गया। ये भी हम 2 या 3 तरह के मजीद भी में पढ़ेंगे। इसका मतलब है कि पीठ फेर लेना, फेर लेना, चेहरे को फेर लेना, खुद फिर जाना, इस तरह के माना इसके निकला करेंगे। तो इंशाल्लाह ये हम टेबल कवर कर लेंगे, फिर मजीद इसी हदीस को बेशक दोबारा देख के इसको समझ लेंगे। इसके बाद अगला है वक़फ़ुल मुहसनातिल मुमिनातिल गाफिलात यानी कि पाक दामन गाफिल मोमिन औरतों पर तोहमत लगाना। अब अगर आपको ऐसे अरबी में हदीस दे दी जाए, फिर पूछ लिया जाए कि 7 काम है, नीचे मुख्तलिफ तरह के ऑप्शन दे दिए जाते हैं, तो आप इनको मिला लीजिएगा। जैसे पहले नंबर पर है अशिरकु बिल्लाही, आप इस पे 1 नंबर लिख लें, जैसे नीचे लिखा हुआ है अल्लाह के साथ शिरक करना। ऐसे ये होगा कि जब आप नंबरिंग बराबर बराबर कर लेंगे, एक तो माना अच्छी तरह से समझ में आ जाएंगे, दूसरी जब आप होमवर्क या क्विज करते हैं उसमें आपको जहन में रहेगा कि अच्छा इसका माना ये था, इसका ये था, इसका ये था। ठीक है जी। अब यहाँ पर है पाक दामन गाफिल मोमिन औरतों पर तोहमत लगाना। इसका क्या मतलब है? गाफिल से थोड़ा हम और तरह समझते हैं ना, गाफिल को गफलत में पड़े हुए। ये गाफिल मोमिन औरतों का मतलब, ये मुराद यहाँ पर ये ली गई है कि उनको पता ना हो, ये तोहमत लगा देना, उनके ऊपर तरह तरह के इल्जाम लगा देना। तो ये वो सारी चीजें हैं, मुहलक गुनाह हैं, जिनसे अल्लाह ने हमें फरमाया कि बचो। यानी कि ये भी नहीं कहा कि बचने की कोशिश करो, बचो। तो अब अपने लिए हम दुआ भी करते हैं, कोशिश भी करेंगे। चलिए जी, ये हमने हदीस देख ली। इसके बाद हम आगे चलते हैं। और हमने वादा किया मूसा से, ये इसको हमने देख लिया, इसको हम मजीद अपना टाइम इस पे नहीं लगाएंगे। वाअदना मूसा, हमने वादा किया मूसा से, ठीक हो गया जी। इसी तरह से इनको हम आज कर देते हैं स्किप, अगली आयत मुबारक पे आ जाते हैं। सुम्मा अफौना अनकुम मिन बादी ज़ालिका लअल्लकुम तशकुरून। सुम्मा फिर अफौना, ये हमने टेबल किया भी हुआ है ना। अफा का टेबल अगर नहीं किया हुआ तो ये उसी तरह से है जैसे दआ का टेबल है, ये सेम वही बन जाएगा। अफौना जैसे हमने कहा दाऊना, इसी तरह से अफौना यानी कि ये कमजोर टेबल आ गया, फिर हमने माफ कर दिया। अच्छा जी, अफा वाला जो टेबल होगा ना, इसमें अन आ जाएगा। ये जो छोटी छोटी सी टिप्स होती है ना, इनको याद रखा करें। जैसे हमने डबो दिया, अगरकना बी, इसके साथ बी आ जाएगा। हम कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, इसमें ली आ जाएगा। तो ये हर पे जर कुछ खास अफाल के साथ खास आते हैं, तो अफौना के साथ अनकुम आ जाता है। ये एक दुआ है, अल्लाहुम्मा इन्नका अफूवुन तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्नी। ये कब पढ़ते हैं हम? याद ही होगा आप लोगों को, लैलतुल कद्र में थोड़ा सा इजाफा भी कर दिया जाता है ना, वो भी ठीक है। तो जैसे कहते हैं अल्लाहुम्मा इन्नका अफूवुन करीमुन तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्ना या गफूरू या गफूरू या गफूर, वो भी ठीक है। बहुत प्यारी दुआ है कि अल्लाह बेशक तू माफ फरमाने वाला है, माफी को पसंद फरमाता है, बस मुझे माफ फरमा। ठीक हो गया जी। अनकुम उसी तरह से जैसे हमने पूरा टेबल किया हुआ है। मिन वही वाला, बादी मिम बादी, बाद यानी कि उसके बाद, जालिका वो ला अल्लाह। अब ये इसके जो ला अल्लाह और कुम दो टुकड़े हो जाएंगे, ठीक होगा जी। ला अल्लाह कुम, ला अल्लाह का माना ताके भी होगा और शायद भी होगा। ये जिस जिस तरह से उर्दू की रवानी के लिए बेहतर मौजू लफ्ज होता है उसको लगा दिया जाता है। ला अल्लाह कुम तशकुरून, ताकि तुम शुक्र गुजार बन जाओ। पेश बता रही है कि ये बाब नौसवारा से है और यकीनन यहाँ पर शुक्र की बात की गई है सामने वालों की।
जब अल्लाह ताला हमारे गुनाहों के बावजूद हमें नेमतों से नवाजता है तो हमें फौरी तौर पर तौबा करनी चाहिए, अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए और उसकी इताअत में लग जाना चाहिए। अच्छा जी, टुकड़े यहाँ पर सिर्फ अनकुम के और लअल्लकुम के करेंगे, बाकी तमाम वही हैं। ठीक हो गया जी। और यहाँ पर कोई खास ऐसी चीज नहीं है जिसको समझा जाए अलग से। लअल्लकुम तशकुरून, अब इसमें से कौन सा माना सही लग रहा है? ताकि तुम शायद कि तुम सब शायद तुम शुक्र सब अदा शुक्र करने लग करो। जाओ। हाँ। अब ये जो अल्लाह की वजह से थोड़ा सा जो फर्क पड़ा है ना तर्जुमे पे, ये उसी तरह से जैसे इज और इजा से फर्क पड़ता है, इसी तरह से लाल्ला भी एक ऐसा हर्फ है जिससे हमारे माना में थोड़ी सी तब्दीली हो जाती। होना तो ये चाहिए था कि शायद तुम सब शुक्र अदा करते हो या करोगे, ये इस तरह से नहीं होगा, इसमें इज और इजा की तरह थोड़ा सा माना में फर्क आ जाएगा। इसके बाद है इज आतईना, आतईना हमने एक टेबल किया है अता याती, ठीक हो गया। अब एक और टेबल हमने करना है, इसी से मिलता जुलता, इनके रूट लेटर यही रहेंगे, हमजा ता और या, ये आ जाएगा मजीद फीही में, ये आएगा बाब असलमा से। आतईना ये होगा आता, आता, ठीक है। अता वो तेजी से जल्दी से नहीं, आता युती। अब ये उसी तरह से आतईना, उसमें तो हम अतईना कहते थे ना तेजी से, यानी कि इसमें आप समझ लें कि दो फिर से हमजा आ गए, अब उसमें एक हमजा को खड़ी जबर में बदल दिया तो आतईना। हमने दी, क्या दी? मूसा को किताब, अल किताबा वल फुरकाना, फुरकान कहते हैं हक और बातिल के दरमियान फर्क करने वाली चीज को, और इसका माना फर्क करने वाली भी है। तो ये किसके लिए यूज हो जाता है? फुरकान लफ्ज हमारे इस्तेमाल में भी है, कुरान पाक को शरीफ कहते हैं। कुरान हक और पाक, बातिल फुरकान, कुरान मजीद, कुरान हमीद। अच्छा जी, उसी तरह से आगे आ गया लअल्लकुम तहतदून, जैसे हमने पिछली आयत मुबारका में पढ़ा, लअल्ला को अलग कीजिए, कुम को अलग कीजिए, ताकि तुम सब क्या हिदायत पालो। तहतदून, अच्छा जी, तहतदून में ये है हाँ दाल और या, यानी कि हदा यहदी, और यहाँ पर तहतदून में थोड़ा थोड़ा इजाफा लग रहा है, ता वाला इजाफा है, थोड़ा सा एक छोटा सा बल्ब ऑन कर लीजिए कि ये कहीं ना कहीं इख्तलाफा पे जा सकता है। तो इंशाल्लाह ये जब हम अपने कमजोर अफाल करेंगे उसमें उसमें भी आप बहुत इंजॉय करेंगे इंशाल्लाह। अब उसमें होगा ये कि हम करेंगे कि मेन बाब इख्तलाफा है, उसके बाद जो हम पहला टेबल करेंगे उसे हम अपना रेफरेंस टेबल बना लेंगे। तो है लअल्लकुम तहतदून, ताकि तुम सब हिदायत पालो। हदा यहदी में क्या था? हदा का माना क्या था? उसने, उसने हिदायत ने हिदायत पाई। हाँ। उसने हिदायत दी, फर्क उसने क्या है? उसने हिदायत दी। उसने हदा, हिदायत हाँ। दी, इहतदा होगा यहाँ पर, जो होगा ना वो होगा इहतदा। उसने हिदायत पाई, हिदायत देना और पाना फर्क है ना। हिदायत कौन देता है? हादिम कौन है? अल्लाह ताला। और हम सब कौन है? हम हिदायत मांगते अल्लाह ताला से, हम हिदायत पाने वाले हैं। तो उसमें आ जाएगा जब इंशाल्लाह इस टेबल पर हम पहुंच जाएंगे तो मुख्तदिन मुख्तदन उसी तरह से कमजोर ये सॉरी मजीद पी के बन जाएंगे अफआल। फिर हम ये सारा पीछे से अपना देख के आएंगे आगे कि जो जो इनको आप निशान लगा लिया करें, जैसे तहतदून है, आतईना है, इन दोनों को आप मार्क करके हाईलाइट करके छोटा छोटा इसके ऊपर लिख लें कि मजीद भी, ताकि जब हम इन अफाल पर पहुंचे तो ये जो हम पीछे छोड़ के आए थे इनको हम दोबारा से कवर करेंगे इंशाल्लाह। वाइज आतईना किताब को देने का मकसद सिर्फ ये नहीं कि इसकी तिलावत की जाए, बल्कि इसका मकसद ये है कि लोग इससे हिदायत और रहनुमाई हासिल करें। हमने किसी वन में भी पढ़ा था कि अल्लाह ताला ने कुरान पाक को नाजिल किया और कहा कि ताकि पता चले आप लोगों में से कौन है जो इससे नसीहत हासिल करते हैं, जो इसे पढ़ते हैं। और अब हम ये जो आखिर में बार बार मैं बताती कि हम कहते हैं ना कुरान पाक को पढ़ना, समझना, गौर करना, अमल करना, फैलाना, ये कुरान मजीद के हुक्म को हम पर सिर्फ कुरान मजीद को प्यारे प्यारे गुलाफ में लपेट कर एक दफा पढ़ लिया, पढ़ के रख देना मकसद नहीं है, बल्कि इससे हिदायत हासिल करनी है, रहनुमाई हासिल करनी है और इसकी तालीमात को समझना है और फैलाना भी है, क्योंकि कुरान मजीद क्या है? फुरकान हमीद है, हक और बातिल के दरमियान फर्क करने वाली चीज है। तो जब हम समझ के पढ़ेंगे तो इंशाल्लाह हमें हिदायत भी नसीब होगी।
اللہ की किताबें हमें ऐसी कसौटी बताती हैं जिनके जरिए हम जान सकते हैं कि क्या सही है और क्या गलत है। हिदायत के बगैर अल्लाह की सही इबादत करना या फिर लोगों के साथ अपने मामलात को दुरुस्त करना मुमकिन ही नहीं है। इसीलिए अल्लाह की किताब की हर सतर को जानना जरूरी है, क्योंकि न जाने कब हमें किस चीज में इल्म की और हिदायत की जरूरत पड़ जाए। हम अपने रोजमर्रा के कामों में या मामलात में कुरान पाक से मुकम्मल हिदायत और रहनुमाई हासिल कर सकते हैं। और जैसे अब हमने अल्हम्दुलिल्लाह शुरू किया है, जो जो अल्फाज हमें समझ में आ जाते हैं, जब वो और मजीद सूरा में भी आ जाते हैं ना, तो हमें पता चलता है कि यहाँ पर ये बात की गई है, यहाँ कुछ बताया गया है। अच्छा जी, मैं ये सोचती हूँ कि आप लोग अनम्यूट क्यों करते हैं खुद को, जबकि मैंने तो ऐसा कुछ कहा ही नहीं, ऐसी कोई डिमांड ही नहीं की। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। वाह एक, फिर इसके बाद इस दूसरा, आतैना पूरा एक कलमा, टुकड़े नहीं होंगे, मूसा अल किताब वल फुरकान, व को अलग करना है, अल फुरकान, ठीक हो गया, दो अलग अलग करने हैं। लअल्ला अलग कर लीजिए, कुम को अलग कर लीजिए, तहतदून एक पूरा जुमला या एक पूरा फिक्रा, ताकि तुम हिदायत पालो। अब कुम का भी तुम था, तहतदून का भी तुम था, तो इसके लिए हम एक चीज याद रखेंगे कि जहां बात में ताकीद जोर पैदा करना हो, यानी कि तुम ही हो, वो तुम ही थे जिनको कहा गया कि तुम लोग हिदायत पालो। ठीक हो गया जी। ये भी रिक्वायर्ड नहीं है आप लोगों से कि आप इस तरह से बताएं कि ये इसका ये माना इस वजह से हुआ। मैं थोड़ा थोड़ा सा इसलिए बताती हूँ कि ये थोड़ी थोड़ी जो हम समझने की कोशिश करते हैं ना चीजों को, ये आगे इंशाल्लाह आपको चीजें समझना बहुत आसान हो जाएंगी। अच्छा जी, किसी का हैंड रेज है मेरे अलावा भी? जी हाँ जी, क्वेश्चन है तो कर लीजिए, पूछ लीजिए। चले जी, मैं अपना तो लॉयर कर लेती। हाँ जी, सिस्टर नाहिद, आपका कोई क्वेश्चन हो? जी जी, मेरे दो क्वेश्चन है। एक तो ये कि अल इजल, इसका मतलब है कि ये इसम मार्फा है, तो मुझे ये भी पता करना था कि ये मुज़क्कर है कि मुअन्नस है अल इजल। अल इजल बछड़े को कहते हैं ना, बछड़ा, तो ये मुजक्कर ही इससे मुराद लिया गया है। और अच्छा ये जो ठीक है है, ठीक। मारिफा और नकरा, इसको इंशाल्लाह हमने डिटेल से पढ़ना है। कब पढ़ना है? हमने QC 5 में पढ़ना है, उसके बाद QC 6, QC 7 में इंशाल्लाह हमने, एक होता है इल्मु सर्फ, एक होता है नहव। ठीक हो गया। अभी हम इल्मु सर्फ सीख रहे हैं ना, अभी हम अल्फाज को सीख रहे हैं, अल्फाज कैसे बनते हैं, तोड़ते हैं, खोलते हैं, जोड़ते हैं, जमायर जोड़ते हैं, इनके साथ हम जी अफआल को माजी मुदारे सब देख रहे हैं ना। जब हम इंशाल्लाह आ जाएंगे QC 5 में, तो हम सर्फ की तरफ आ जाएंगे। हम समझेंगे कि अच्छा, ये मारफा है तो क्यों मारफा है, नकरा है तो क्यों नकरा है। ये सारी चीजें इंशाल्लाह हमने सीख लेनी है। एक दूसरी बात मैंने पूछनी थी आपसे कि अल किताब वल फुरकान, अल अल किताब, किताब भी पाक अल किताब। के साथ है? जी ऑफ कोर्स। और अल फुरकान भी, तो ये दो एक तरह अल अल आ गए ना साथ हाँ, साथ। इससे यानी कि हमारे तर्जमे में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अल फुरकान यानी कि यही वो खास किताब है, खास तौर पर फर्क करने वाली है। किस में फर्क करने वाली है? हक और बातिल में। ठीक ये है क्या जी? असल में किताब, ये कुरानी किताब ही की तारीफ है कि ये वो उन्हें वो किताब दी थी ऊपर से जो कि फुरकान करती थी, सब कुछ का फर्क जाहिर करती थी। ये किताब और की बाकी तारीफ है। बाकी किताबें जो अल्लाह ताला ने नाजिल की थी, उसमें देखिए लोगों ने अदला बदली कर ली ना, अपने जो मुफाद की चीजें रख ली थी, कुछ एडिशन हो गई, कुछ उसमें से चीजें माइनस होगी। लेकिन कुरान का मोजजा भी है कि ये बदलेगी भी नहीं। जिस तरह से अल्लाह रब्बुल इज्जत रोजे अव्वल से उतारा था, ये रोजे क़यामत तक इसी तरह रहेगी। ठीक हो गया जी। लअल्लकुम तहतदून, शायद कि तुम सब हिदायत याफ्ता हो जाओ, ताकि भी हो सकता है इसका माना। अच्छा, तो अल्लाह ताला की किताबें हमें डैश जानने के लिए मियार फराहम करती हैं, हक और बातिल। हक हक और और बातें। अच्छा, वैसे इसमें सारी चीजें आ गई, सही और गलत, रोशनी और तारीकी, सजा और रहमत, सारी चीजें आ गई। ठीक हो गया जी, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जी, सिस्टर का जो क्वेश्चन था ना, ये था ना अल किताब वल फुरकान। अच्छा, तो ये जो अल किताब वल फुरकान, इसमें एक वाव भी आ रही है ना, वाव, ये वाव क्या बता रही है? कि किताब और फर्क करने वाली चीज।
अब इन दोनों की ये जो अल है, एक जैसी दोनों की जो हरकत है, इसको भी इंशाल्लाह हमने QC5 में समझ लेना है। कुछ QC5 में समझेंगे, उसके बाद इंशाल्लाह QC5 में इनकी इस तरह से डिटेल पढ़ेंगे कि ये जो हम पीछे पढ़ के आएंगे ना, ये भी सारा हमें पता चल जाएगा। अब जैसे हमने आपकी तरह पढ़ा हुआ है, हमने इसमें सारा सर्फ पढ़ा हुआ है, लेकिन अब पढ़ते हुए पढ़ाते हुए अब मुझे पता चल रहा है कि अच्छा इस पर ये जो चीज थी, इसकी ये वजह थी, ये वजह थी। अगर अभी से हम उन चीजों पे आ गए तो फिर हमारे लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा आगे बढ़ना। ठीक हो गया जी। ये अब हमारा तर्जुमा है, रवां तर्जुमा। कोई अगर पढ़ना चाहता है तो पढ़ ले। मैं पढ़ लेती हूँ। ये पढ़िएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वाह और इस जब वाह अदना हमने वादा किया मूसा से 40 लैलतन रातें, सुम्मा फिर तुमने बना लिया इज्ल बछड़े को मिन से बाद उसके, वाह और अंतुम तुम जालिमून जुल्म करते थे, सुम्मा फिर अफौना हमने माफ किया दरगुजर किया, अनकुम तुमसे, मिन से बात ज़ालिका ये, लअल्लकुम ताकि तुम तशकुरून तुम शुक्रगुजार बन जाओ। वाह और इस जब आतैना दिया हमने मूसा अल किताब वाह और अल फुरकान हक फर्क करने वाला, लअल्लकुम ताकि तुम तहतदून तुम हिदायत पालो। तुम हिदायत पालो। बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जी, यहाँ पर हम अब देख लेते हैं हमारे लिए आज के लेसन में सबक क्या है। असबाक हमने देख लिए थे और इस पर अच्छी अल्हम्दुलिल्लाह बात भी हो गई। ए अल्लाह, हर किस्म के शिरक से दूर रहने में मेरी मदद फरमा। शिरक, अच्छा शिरक नहीं कहना, ये मेरे मुंह से निकल गया। हर किस्म के शिरक से दूर रहने में मेरी मदद फरमा, मुझे कुरान और हदीस पर अमल करने वाला बना। अच्छा जी, हमारा कुछ प्लान भी होना चाहिए, दुआ होती है, एहतिसाब होता है। ये हमारे पास बुक में लिखे भी हुए हैं, लेकिन इसको हम एक दफा पढ़ भी लेते हैं। इंशाअल्लाह मैं कुरान के मानी, कवायद और तफसीर का और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीसों, सुन्नतों का और सीरत का, जो कुरान पर अमल का बेहतरीन नमूना है, मुताला करती रहूंगी इंशाअल्लाह जी। अच्छा जी, अस्मा देख लेते हैं। लैला, इसकी भी डिफरेंट सी है, चेंज सी जमा क्या है, लयाली। लैला, लैला तू, ठीक है, लयाली। किताब, कुतुब। अब ये दोनों किस तरह की जमा है, जमा मुकस्सर, यानी कि टूटी फूटी जमा। हमारे पास फतह, नसर और दौराबा सामिया, यानी कि सेहतमंद अफाल पर जो दो हैं अफाल, वो कौन से हैं? ज़लमा, यज़लिमु, इज़लिम, ज़ालिम, मज़लूम और जुल्म। हम कहते हैं ना, कुरान खोलोगे तो अल्लाह की मदद आएगी, फतह नौसरा, वरना मार पड़ेगी, दौराबा। उसके आगे था उन्होंने जुल्म किया, ज़लमा यज़लिमु, ताकि याद रहे, और हमने सब्र किया, सबरा यस्बिरु। फिर वो ज्यादा लंबी फ्रेज थी, उसको बीच में से निकाल दिया गया, खत्म कर दिया गया। अच्छा जी, ज़लमा, अब याद रखिएगा कि ये बाब दुआद पर ही है। ज़लमा, यज़लिमु, इज़लिम, ज़ालिम, मज़लूम और जुल्म। यहाँ पर दोनों साकिन की हैं, साकिन नहीं है। इदरिब, इज़लिम। ठीक हो गया जी। शाकरा, यशकुरु, उशकुर, शाकिरुन, मशकुरुन और शुक्रुन, ये बाब नून से है। और जो पहला वाला हमारा सीगा होता है माजी का, सेहतमंद में ये होता है कि वो ही इसके रूट लेटर बन जाते हैं। इसके बाद कमजोर अफाल हैं, दाल और ऐन से, आफा, याफू, उफू, आफिन, माफून और अफवन। सिस्टर तौहीद का हैंडरेज है। जी वो मैंने एक चीज नोट की है, शायद गलती है, ये शायद मुझे गलती लग रही है। इजलिम के इजल, जी इदरिब, यहाँ पे, इजलिम, हाँ जी, तो यहाँ पे जज्म गलत लगी हुई है ना, हाँ जी, वही मैंने बुक आपको में भी लगी, बताया कि यहाँ पर अच्छा जज्म नहीं आएगी, दो साकिन नहीं होते ना। दो अच्छा, सेकंड में। बुक में भी ऐसे ही लिखा हुआ जैसे यहाँ अच्छा, लिखा है स्क्रीन ये पे। जिसने भी स्लाइड्स बनाई हैं फिर उसने इसी हाँ से मुतासिर होके बनाई है। ओके ठीक। सही है। तो क्या जी, आप इसको खुद ठीक कर लें। ये इजलिम है, इजलिम।
हाँ जी, जब आप देखें ना कि ये बाप दौद पर है तो इदरिब आप है ना, नीचे देखिए इदरिब, इदरिब, हाँ जी। फिर पूरा पूरा हो जाएगा। ठीक है, चलिए जी आगे बढ़ते हैं। अच्छा जी, ये जैसे दआ का टेबल है ना, ये उसी तरह से आफा है। और आप देखें कि दआ टेबल के जो थे रूट लेटर दाल आइन वाव था, इसका आइन पाओ वाव, ठीक हो गया जी। उसी तरह से मिलते जुलते रूट लेटर भी हैं, वही सारा। जैसे उदू था तो ओ अफू है, दाइन था तो आफिन है। ये आ गया हमारा वादा युवाइदु वाइदुन मुवाइद मुवाअदुन, और सॉरी मुवाइदुन मुवाअदुन और मुवाअदातुन। बड़ा मुश्किल है, लेकिन इंशाल्लाह इंशाल्लाह हम इसको कर लेंगे। एक और पूछ सकती हूँ, ये जो मुवाइदतुन है, ये मुआहिदा की वो होगा उर्दू में आहादा इस्तेमाल। से, आहादा। अच्छा, तो क्या ये आहादा वो टेबल भी आएगा, वो भी आगे कहीं आ जाएगा, वो ऐसे लिखा जाएगा। ये ए आएगा अमर। ये है, इसका ये आंसर है ये ये, है। उफू, हाँ उफू। वो जो आप टेबल कह रहे हैं ना, वो आ जाएगा आहादा। ठीक हो गया जी। इसका फिर आ जाएगा आहादा यू आहिदु, फिर आ जाएगा आहिद, फिर मुआहिदुन मुआहदुन, फिर इसका आ जाएगा मुआहिदा हदा, सॉरी मुआहदा, क्योंकि हम उर्दू में मुआहिदा कहते हैं ना, तो वो जी हमारे मुंह पे चढ़ा हुआ है ऐसे मुआहदा। ठीक हो गया जी, इसका मुआहदा हो जाएगा। बहुत शुक्रिया। जज़ाकिल्लाह खैरा। इसको हमने आइडेंटिफाई कर लिया है कि यहाँ पर कौन सा आ जाएगा हमारा। तो एक्सक्यूज मी सिस्टर, उसका मानी क्या होगा जो भी आपने किया है? वादा करना, उसका भी वादा ही है। हाँ, उसने वादा किया, उसका भी यही और इसका भी यही। हाँ जी, वो था ना वादा, उसने वादा किया। एक जी अहद करना भी होता है ना, अहद करना। जी। कि, आप इरादा कर ले कि अब ये वाला काम नहीं करना मैंने, वो अपने आप से हम अहद कर लेते हैं। ठीक है, और एक होता है वादा करना, जो एक दूसरे से हम ऐसे पक्का वाला वादा कर लेते हैं ना, अल्लाह का पक्का वादा, कि वो वाला है। जी। और आयदा का एक ये भी आपने मतलब बताया था कि दोबारा आना है ना, जिसमें होता है इसका ईद का ये मतलब ये भी होता है दोबारा आना। इसका वो इयादा होता है। याद, हाँ इआदा वो तो वो उर्दू का जो लफ्ज है है ना, याद, दोहराई हाँ। करना, वो जो हम दोहराई करते हैं, इआदा करना, वादा का मतलब इआदा हो जाता है। वादा और उसका फिर आहद। फेयर चेंज हो जाएगा। अच्छा, सेम मैंने ये क्वेश्चन इसी तरह से किया था कि जो इआदा इससे मिलता जुलता है, तो इसका मतलब है कि इंशाल्लाह इंशाल्लाह हम इसी तरह से सीखते हुए ही आगे जाते हैं, और आप भी इसी तरह सीखते हुए इंशाल्लाह एक दिन मेरी सीट पर होंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। ये बहुत खुशी होती है कि जब आप इस तरह से क्वेश्चन करते हैं, और मुझे फिर ये इस बात की भी खुशी होती है, अच्छा ये इसका मतलब है कि मेरी भी अंडरस्टैंडिंग ऐसी ही थी, मैं भी इस लफ्जों को देखकर इसी तरह से कंफ्यूज हो जाया करती थी। फिर शौकरा से इस्मुल फाइल, सी शाकिरुन। शाकिरुन नाम भी रखते हैं ना। अच्छा जी, किताब की जमा, ये तो कुतुब। किताब कुतुबुन, बी कुतुबुन। अल्हम्दुलिल्लाह जी, सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। हमारा ये कंप्लीट हो गया। अब हम ऐसा करें कि कोशिश करते हैं 6 बजे तक कंप्लीट कर लें क्लास, क्योंकि फिर आजान भी हो जाती है। जी। सिस्टर ये बताइएगा कि इजल का जमा क्या होगी? उजूल। ठीक हो गया जी।
अच्छा जी, आज का हमारा जो टेबल है वो है इस्तगफरा। अब हमारा वो फ्रेज भी पूरा हो जाएगा ना। कैसे है? तालीम और मुहासबा की इस्लाम में बड़ी अहमियत है, इसलिए इख्तिलाफ मत कीजिए, इस्तिगफार कीजिए। ये हम छोड़ते हैं कि आपने वीडियो देखी या नहीं देखी। इस्तगफरा, ठीक हो गया, इस्तगफरा। अगर मैं आपसे कहूं कि यहाँ पर ये जो है गौइन फा और रा, ये इसके रूट लेटर हैं, ठीक है। अब आपने याद रखना है, गौइन फा और रा को जहन में रखते हुए अब आप बनाइए इस्तकबरा। क्या रूट लेटर बनेंगे? काफरा, काफ बार रा, काफ बारा, ठीक हो गया जी। और इसी तरह से इस्तजाबा, अच्छा छोड़ दे, इस्तजाबा इस्ता, ये दो मेन बड़े तो हैं, अभी छोड़ दें क्योंकि इसमें वो कमजोर आ जाएगा। हम देख लेते हैं, इसमें से ढूंढते हैं जो हो। इस्ताजला, आइन जीम लाम, आइन जीम लाम, इस्तदअफा, दाल आइन फा। दौद, आप वर्ड पे भी निशान लगा दिया अगर फिर नजर नहीं आता। मैं लगाती हूँ जरा, इसको मैं पिछली स्लाइड पे ले आऊं। अच्छा जी, अब हम ऐसा करते हैं, इस पे निशान लगाते हैं। अच्छा जी, अब मैं आपसे कहती हूँ इसका बनाई इस्तबदला, बादालाम, बादाला, ठीक हो गया जी। इस्तशहदा, शीन हादा, ठीक हो गया जी, अल्हम्दुलिल्लाह। शीन हा दाल, इस्तअजरा, यहाँ पर आसानी क्या हो गई हमारे लिए? रूट लेटर अलिफ सीन को हटा आखिर के के तीन, आखिर के तीन अल्हम्दुलिल्लाह जी, जज़ाकल्लाह खैरा। ये ज्यादती है 3 अल्फाज, ये हमारे रूट लेटर है। और हमने कहा इस्तगफरा से बनेगा इस्तिगफार। अब आप शुरू करें इस्तकबरा से। इस्तकबार, अच्छा जी, तक नहीं कहना, इस्तिकबार, ठीक है, ये जेर लगानी है। इस्तकबार, इस्ताजला से इस्तिजाल, इस्तिजाल, भी आ जाएगी। और हमने कहा था इस्तबदला, इस्तिबदाल, इस्तिबदाल। ये अल्फाज यूज हो भी जाते हैं उर्दू में, थोड़े मुश्किल हो जाते। अच्छा जी, इस्तस्लमा, इस्तिस्लाम, इस्तिस्लाम। अब एक और चीज हम देखते हैं, तीन लाम मीम। हमने तीन लाम मीम देख लिया अस्लमा में, और अब हमें ये यहाँ भी नजर आ गया इस्तस्लमा में, और ये सल्लमा भी होता है। यानी कि इससे पता चलता है ये एक ही रूट लेटर मुख्तलिफ पे आ सकता है अबवाब पे। अच्छा जी, ये किसी तरह से इस्तबसरा, इसका क्या बन जाएगा? इस्तिबसार, ठीक हो गया। इस्तनकफा, इस्तिनकाफ, अल्हम्दुलिल्लाह। इसको हम यहीं पर कंप्लीट करते हैं। हम पूरा टेबल जो बनाएंगे ना, उसमें बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो जाती है, जो अब दोहराई में करते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। और आपने इससे परेशान नहीं होना, ये जो नए टेबल करते हैं ये मुंह पे चढ़ने में थोड़े से मुश्किल होते हैं, लेकिन प्रैक्टिस से इंशाल्लाह, प्रैक्टिस करते रहेंगे ये बहुत अच्छे हो जाएंगे। जैसे ग्रुप में बेहतरीन प्रैक्टिस की आप लोगों ने, अल्हम्दुलिल्लाह। हमारी ये जो QC1 की फ्रेज, 2 की फ्रेज, ये हम बार बार देख चुके, हम सीधे आते हैं अपने मजीद की ही पर। सामिया से आज हमने देखा इस
इस्तमा इख्तलफा की तरह हो गया। इसी तरह से हमने आलिमा से अल्लामा सीखा, सालिमा से अस्लमा सीखा, इसको कहते हैं मजीद फीही। तालीम और मुहासबा इस्लाम की बुनियादों में से है, इसलिए इख्तिलाफ मत कीजिए, इस्तिगफार कीजिए। अब आपने इसको अस्तगफार नहीं कहना, ठीक हो गया? वो हमारा मेरे ख्याल से पंजाबी वाला है बोलने का अंदाज, अस्तगफार कर लो, तो इसका हमने कहना इस्तिगफार। ये मेरा सवाल था पहले, आपने मुझे कहा था बाद में हाँ बताऊंगी। जी जी। तो वो जो हम कहते भी हैं वो फिर हम अस्तगफिरुल्लाह गलत कहते हैं, इस्तगफिरुल्लाह कहें। अच्छा जी, ये जो आपका क्वेश्चन है इसको इधर रखिएगा, ठीक है? इसे हम अब टेबल पे फिट करेंगे इंशाल्लाह, ठीक है? इस्तगफरा रेड कोडेड जो हरूफ हैं वो हमें बता रहे हैं कि यही ज्यादती है। हमजा, सीन और ता, इसमें क्या चीज होगी? इसमें एलिमेंट पाया जाएगा मांगने वाला, चाहने वाला। जैसे अब यहाँ पर इस्तगफरा, उसने बख्शिश मांगी या उसने बख्शिश चाही, ठीक हो गया? जैसे इस तकबरा को भी हम देखें ना, अब उसमें जब आ जाएगा मुस्तकबिरुन, यानी कि उसने बड़ाई मांगी या बड़ाई चाही। अब तकब्बुर करने वाला क्या करता है कि उसको ये पसंद होता है कि मुझे दूसरे अपने से बरतर समझे, तो उसमें ये जो एक चाहने वाला एलिमेंट पाया जाएगा, ये इस तरह के इस्तगफरा वाले, जहां पर अलिफ सीन और ता की, हमजा सीन ता की ज्यादती होगी, उसमें कहीं ना कहीं, जैसे इस तस्का में उसने पानी मांगा, इस तहया उसने जिंदगी मांगी। हमने कहा था इस ताजला, यानी कि उसने अजलत जल्दी मांगी, अजलत कहते हैं ना जल्दी करने को। और इसी तरह से जैसे हम कहेंगे इस्तकामत, यानी कि इस्तकामत चाहिए। तो इसमें जितनी भी हम करते जाएंगे प्रैक्टिस, इसमें हमें ज्यादा ये माना की समझ आएगी कि जो इस्तगफरा वाले हैं इसमें किसी चीज को मांगने वाली बात होगी। जैसे हम कहते हैं अल्लामा में, उसमें ये था कि उसने सिखाया, सिखाने वाली बात होगी। उस तरह के जो होंगे उसमें उसी तरह से माना आ जाएगा। आज सिस्टर अफसा ने आपको बड़े अच्छे से समझाया कि इह्तमाम आ गया इख्तलाफा में। इसी तरह से हमने याद रखना है कि इस्तगफरा में बख्शिश मांगने या चाहने वाली बात है, ठीक हो गया जी? अब हमने पहले सीगा से शुरू किया इस्तगफरा, ये पूरे हम टेबल पे हमजा, सीन और ता को आगे साथ लेके जाएंगे। जैसे हम कहेंगे इस्तगफरा, उसने मगफिरत मांगी, इस्तगफरू उन सब ने मगफिरत मांगी, इस्तगफरता आपने मगफिरत मांगी, इस्तगफरतु मैंने मगफिरत मांगी, इस्तगफरतुम आप सब ने मगफिरत मांगी, इस्तगफरना हम सब ने मगफिरत मांगी। और इसके बाद इस्तगफरत उस औरत ने मगफिरत मांगी। इस्तगफरा, इस्तगफरू, इस्तगफरता, इस्तगफरतु, इस्तगफरना, इस्तगफरत, ठीक हो गया जी? आप अपने माइक्स म्यूट ही रखे हुए इसको दोहरा भी लीजिए, फिर हम इंशाल्लाह एंड पे सुनेंगे भी आपसे। इस्तगफरा, इस्तगफरू, इस्तगफरता, इस्तगफरतु, इस्तगफरतुम, इस्तगफरना, इस्तगफरत, ठीक हो गया जी? अब हमारे पास पहली चाबी आई, तो उसके बाद बाकी तमाम की तमाम तब्दीलियां जो हमने फ़अला पे की थी वही होती हैं। अच्छा जी, जैसे हमने गिराया था इख्तलाफा का हमजा, उसी तरह से हलिस्तगफरा हो जाएगा, ठीक हो गया जी? हलिस्तगफरा, अब ऑन कर लीजिए। नाम इस्तगफरा, नाम इस्तगफरा, हमने जवाब देना है नफी में, फिर हम कैसे मिलाएंगे? मा इस्तगफरा, मा इस्तगफरा। अच्छा जी, अब हम इस पे ये कर सकते हैं, मस्तगफिरा भी कर सकते हैं, ठीक है? मस्तगफरा भी कर सकते हैं। अच्छा जी, हलिस्तगफरू, नाम इस्तगफरू, ठीक हो जी। हलिस्तगफरता, नाम इस्तगफरतु, हलिस्तगफरतुम, नाम इस्तगफरना। अल्हम्दुलिल्लाह। इसी के साथ हम लगा देते मिन कुल्ली ज़म्बिन, अस्तगफिरुल्लाह ताला रब्बी मिन कुल्ली ज़म्बिन व अतूबु इलैहि, हम पढ़ते भी है ना, 5वां कलमा उसमें हम पढ़ रहे होते हैं। क्या उसने तमाम गुनाहों से मगफिरत मांगी? अलिस्तगफरा मिन कुल्ली ज़म्बिन, नाम इस्तगफरा मिन कुल्ली ज़म्बिन, ठीक हो गया? हलिस्तगफरू मिन कुल्ली ज़म्बिन,
नाम इस्तगफिरू मिन कुल्ली من كل ज़ंबिन। ذنب हल इस्तगफरता मिन कुल्ली ज़ंबिन, नाम استغفرت इस्तगफिरू मिन من कुल्ली كل ज़ंबिन। ذنب हल इस्तगफरतुम मिन कुल्ली ज़ंबिन, أم नाम استغفرنا इस्तगफरना मिन من कुल्ली كل ज़ंबिन। ذنب। अल्हम्दुलिल्लाह जी। ये हमने इस्तगफरा वाला टेबल इस तरह से देख लिया। अब आते हैं यस्तगफिरू। हमारे पेश वाले जो थे वो कंप्लीट हो गए। अब हम उसी तरह से जैसे हम कहते थे यफ़अलु यंसुरु, इसी तरह से हम या से शुरू करेंगे। अब इस्तगफरा यस्तगफिरू, ठीक हो गया जी। इस्तगफिर इस्तगफरा, इसके बाद है यस्तगफिरू। पहली चाबी हमें याद करनी पड़ेगी, यस्तगफिरू यस्तगफिरू। यस्तगफिरू। मगफिरत मांगता है या मांगेगा। यस्तगफिरू यस्तगफिरूना, वो सब मगफिरत मांगते हैं। तस्तगफिरू, आप मगफिरत मांगते हैं। अस्तगफिरू, मैं मगफिरत मांगता हूँ। इसके आगे ओके, लगाइए अल्लाह, क्या बन जाएगा? अस्तगफिरुल्लाह। मैं अस्तगफिरुल्लाह। मगफिरत अल्लाह से मगफिरत मांगती मैं हूँ। अल्लाह से मगफिरत मांगती कौन सी हूँ। सिस्टर ने क्वेश्चन किया था, उनको आंसर मिल गया? जी तौहीद। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। अस्तगफिरुल्लाह हम कह रहे होते हैं जब हम दुआ मांग रहे होते हैं, हम कहते हैं अस्तगफिरुल्लाह। वैसे भी कहते हैं हम, कोई भी हमें बात लेकिन करना है। मैम हम जब लिखते हैं तो उस पे सिर्फ जबर डालते हैं, हमजा नहीं डाली होती साथ। ये जो हमजा के ऊपर जबर है ना, ये आप नाम भी डाल लें, ये पता है कि ये यहाँ पर अस्तगफिरुल्लाह ही होना, क्योंकि ये जो हमारा पूरा है ना, जब हम मजहूल नहीं कर रहे तो इसका मतलब इस पे जबर ही आनी है। पेश आने की 4 वजूहात हमने कल पढ़ी थी, मजहूल, बाबे तफ़ईल, बाबे मुफ़ाअला और बाबे इफ़आल, बस उन पे पेश आनी है। बाकी ये सब पे इसी तरह से जबर ही आनी है। ठीक हो गया जी। अब क्योंकि ये हम तो मालूम वाला पढ़ रहे हैं ना जी, ज्यादा लोग हो तो हम नस्तगफिरू भी कह सकते हैं। ज्यादा हो तो नस्तगफिरू भी कह सकते हैं, जैसे हम कहते हैं नस्ताइन, जैसे हम जैसे आप नशहदु अल्लाहुम्मा कहते हैं, इन्ना नशहदु। नस्ताइनुका व नस्तगफिरुका। वो जैसे नीचे हम है, एंड पे लिखा हुआ है। हाँ, नस्तगफिरू, हम सब मगफिरत हम मांगते सब हैं। मगफिरत मांगते हैं। जैसे जी। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्ताइन, वो जो नस्ताइन है ना, हम तुझ ही से मदद मांगते हैं। इसका मतलब हुआ कि नस्ताइन का ताल्लुक भी कहीं जुड़ेगा इसी टेबल से। कैसे जुड़ेगा? उसमें कमजोर हर्फ है, थोड़ा सा फर्क पड़ जाएगा, तो हम इंशाल्लाह वो वाले टेबल करेंगे इंशाल्लाह से। लेकिन ये कि जो छोटी छोटी सी जो एक से दूसरी कड़ी जो जुड़ती है ना, इसको याद रखा करें। ठीक हो गया जी। अच्छा जी, इसको एक मैं ये जो आप आखिर में दुआ मांगते हैं, जब अपना सफर खत्म करते हैं तो दुआ मांगते हैं, उसमें भी तो नून ही आता है। हाँ जी, उसमें भी नतूबू है ना, उसमें भी उसमें तो सुबहाना हम के लिए है ना। हमने मजलिस के Q7 में कफारे में प्रैक्टिस भी भी दुआ की थी। आती है। आपको याद होगा हमने Q7 में प्रैक्टिस भी की थी। सरकाशिफ भी करवाते, जिन्होंने सरकाशिफ से Q7 किया हो, सरकाशिफ भी करवाते हैं। तो उसमें ये कि जो आखिर में दुआ होती है, हम उसको हम वाले तर्जुमे को जब हम बदलते हैं मैं वाले से, तो फिर हम वो अ वाला अतूबू अस्तगफिरु ऐसे लगा लेते हैं ना। तो ये उसी तरह से नून के साथ हमारा वाला ये नस्अलुका। नस्अलुका, हाँ जी, नस्तगफिरू भी नस्तगफिरु। मजलिस के कफारे में भी आती है। का जो है ना, का नस्तगफिरु का, ये हम का अल्लाह ताला की तरफ इशारा करें कि हम तुझ हाँ ही जी। से मदद चाहते हैं, हम तुझ ही से माफी मांगते हैं। ठीक हो क्या? ये जो का है ये जमायर वाला है, उसके साथ जुड़ा हुआ है। यस्तगफिरु यस्तगफिरूना, तस्तगफिरु अस्तगफिरु तस्तगफिरूना, नस्तगफिरु और या तस्तगफिरु। ठीक हो गया जी। हल यस्तगफिरु, ये उसी तरह से इसको हम आज स्किप कर देते हैं। ठीक हो गया जी। नस्तगफिरु। नस्तगफिरू, हाँ। नस्तगफिरू जी। हल तस्तगफिरूना मिन कुल्ली ज़ंबिन, बी। नाम नस्तगफिरू, हाँ। नस्तगफिरु, अल्हम्दुलिल्लाह। अब हमने क्या करना है, हमने इस्तगफरा से जब हम अपने मुदारे से उठाएंगे ना फेल अमर, तो उसको हम कैसे उठाएंगे? उसे हम इस तरह से उठाएंगे कि हमने या को निकाल दिया, या मुदारे वाला। इकरा
اچھا جی، یہ ہے ہم نے یا کو گرا دیا اور اس کے ساتھ ہم نے گرا دی ہے اپنی پیش. اب کیا بن گیا؟ یہ بن گیا ہے استغفر. استغفر. اس کو پیسے ہاں ادھر گیا جی. اب ہم اس کو جب ہم نے یہ گرا دیا ہے اب ساکن کو پڑھ نہیں سکتے, یہی والا حمزہ واپس آ جائے گا. ویسے تو ہم کہتے ہیں نا عارضی زیر, تو اس کو ہم عارضی زیر بھی کہہ سکتے ہیں. ہم اس کو عارضی زیر لگا کے جیسے ہم نے افعل بنایا تھا اسی طرح سے ہم بنا لیں گے. ٹھیک ہے, استغفر استغفر. اب جتنے بھی ہم نے بنائے وہ آگے دیکھ بھی لیتے ہیں, وہ سارے زیر کے ساتھ آئے ہیں. اقرا آپ ادھر ہو بیٹے, بیٹا یہ نا ونڈو آپ بند کر دیں. ہاں جی بند کر دیں. اچھا جی, اب ہم آگے بڑھتے سے دیکھتے ہیں. جیسے علامہ سے علم, اسی طرح سے حاسبہ سے حاسب, اسلمہ سے اسلم. اس کے بعد ہم نے کیا تھا اختلافہ سے اختلف. اب استغفرہ سے استغفر. ٹھیک ہو گیا جی, استغفر. اس کو ہم نے اسی طرح سے زیر کے ساتھ لے کے چلنا ہے. استغفر مغفرت مانگ, استغفرو مغفرت مانگو. لا تستغفر مت مغفرت مانگ, لا تستغفرو مت مغفرت مانگو. اسی طرح سے استغفر تو استغفرو سے آنسر آ جائے گا, استغفرو تو نستغفرو سے آنسر آ جائے گا. اس کے ساتھ ہم جوڑتے ہیں استغفر اللہ. اب آنسر کیجیے گا. استغفر اللہ. استغفر اللہ. ٹھیک ہو گیا جی, آج یہ ہمارا کانسیپٹ بالکل کلیئر ہے کہ یہ جو ہم استغفر اللہ کہتے ہیں, اس کی زیر زبر شد مد جو بھی اس میں تھی حرکات وہ ہم بالکل صحیح الحمدللہ پڑھتے ہیں. ٹھیک ہو گیا جی. میں مغفرت چاہتی ہوں اللہ سے. یہ سورہ یوسف میں بھی ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے کہا تھا نا کہ میں آپ لوگوں کے لیے مغفرت چاہوں گا اللہ تعالیٰ سے. تو وہاں پر بھی سوفا کے ساتھ آیا, سوفا استغفر لکم, میں آپ سب کے لیے اللہ سے عنقریب مغفرت چاہوں گا. یہ حضرت یعقوب نے کہا تھا اپنے حضرت بیٹوں سے. یعقوب علیہ السلام نے سنا. اس کے بعد جی. ہے استغفر اللہ. کیا آنسر آئے گا؟ نستغفر نستغفر اللہ. اللہ. ٹھیک ہو گیا جی. اب جس طرح سے ہم نے بنانے شروع کیے تھے, ہم کہتے ہیں کہ استغفر اس کے منہ پہ منہ لگا دیں, یعنی کہ استغفر اس کے منہ پہ ایک منہ لگا دیں. اس کے بعد فاعل کے لیے زیر آ جائے گا, اور اس کے بعد جب ہم مفعول بنائیں گے تو زبر آ جائے گی. یہ اسی طرح سے چلتا رہے گا. صرف ایکسیپشنز کہاں آتی ہیں؟ جہاں پہ تھوڑی سی کسی چیز میں تبدیلی آ جاتی ہے. تو موسٹلی یہی اسی طرح سے بنیں گے, زیر اور زبر آتی رہے گی. جہاں پر تبدیلی آئی ہے وہاں پر اس کو ہم اسی وقت کلیئر کر لیں گے کہ یہاں جو تبدیلی آئی ہے وہ کس وجہ سے آئی ہے. اور پھر انشاءاللہ ہمارے کانسیپٹ کلیئر ہوتے ہوتے مکمل طور پر اس طرح سے کلیئر ہو جائیں گے کہ آپ دوسروں کو بھی سمجھانا شروع کر دیں گے انشاءاللہ. مستغفرن مستغفرن. ٹھیک ہو گیا جی. یہ ہو گیا ہمارا اسی طرح سے علامہ سے معلم, معلم, حاسبہ سے محاسب, محاسب, اسلمہ سے مسلم, مسلم, اختلافہ سے مختلف, مختلف, استغفرہ سے مستغفر, مستغفر. ٹھیک ہو گیا جی. اور ہم نے مصدر کی شروع میں الحمدللہ پریکٹس کی تھی کہ استغفار یہ ہمارا مصدر ہے. اب ہم ایسا کرتے ہیں پورا ٹیبل دہرا لیتے ہیں. کون دہرانا چاہے گا ہینڈ ریز کر لے, 3 لوگ دہرائیں گے. ماشاءاللہ ہینڈ تو 8 9. اچھا جی, ڈھیر سارے ہینڈ ریز ہو گئے. سسٹر توحید, سسٹر جویریہ اور سسٹر سامیہ, آپ تینوں باری باری ایک ایک رو کرتے جائیں اور ہینڈ اپنے ڈاؤن کرتے جائیں. استغفر, استغفرا, استغفرو, استغفرتا, استغفرتو, استغفرتم, استغفرنا, استغفرت. یستغفروا یستغفرون تستغفروا استغفروا تستغفرون نستغفروا هي تستغفروا. استغفر استغفروا لا تستغفر لا تستغفروا مستغفرون مستغفرون
इस्तिग़फ़ारुन। अल्हम्दुलिल्लाह, जज़ाकुमुल्लाहु खैर। अच्छा जी, अब आप अपने हैंड डाउन कीजिए। 3 लोगों से हम और पढ़वा लेते हैं, सिस्टर रोबीना, सिस्टर फेरोजा और सिस्टर कोमल। इस्तगफरा, इस्तगफरु, इस्तगफरता, इस्तगफरतु, इस्तगफरतुम, इस्तगफरना और इस्तगफरत। यस्तगफिरु, यस्तगफिरून, इस्तगफरत। जी जी सिस्टर, आप यस यस्तगफिरूना, तस्तगफिर, अस्तगफिर, तस्तगफिरूना, नस्तगफिरु, हिय तस्तगफिर, अब जो ये तीसरी तस्तगफिरू। हाँ, जो तीसरी सिस्टर करेंगे ना, वो इसको दोबारा करेंगी। सिस्टर आप गौर से सुनिएगा, आपने कुछ छोटी छोटी सी मिस्टेक कर दी है, वो इंशाल्लाह आप क्लियर कीजिएगा। जी सिस्टर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यस्तगफिरु, यस्तगफिरूना, तस्तगफिरु, अस्तगफिरु, तस्तगफिरूना, नस्तगफिरु, तस्तगफिरु। ठीक हो गया जी, ये हिया वाला आ गया। ठीक हो गया। हाँ जी, इस्तगफिर, इस्तगफिर, इस्तगफिरु, ला तस्तगफिर, ला तस्तगफिरु, मुस्तगफिर, इस्तिगफार। ठीक हो गया जी, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जी, वैसे तो ये तजवीद की क्लास नहीं है, लेकिन हम क्या कर सकते हैं, थोड़ी सी हम कोशिश करके बेहतरीन कर सकते हैं। तो आपने जब कहना ना इस तग, तो इसको आपने इस तरह नहीं कहना, इस तग नहीं करना। तग करने में कलकला हो जाएगा, वो फिर थोड़ा सा ना खूबसूरती इसकी चली जाएगी। इसको बस आराम से पढ़े, इस्तगफरा, इस्तगफरु। ठीक है, इस तरह से यस्तगफिरु, यस्तगफिरूना। जब जब यस्तगफिरूना, फिर वो तग हो जाता है ना, वो फिर बात बदल जाती है, मजा नहीं आता। ठीक हो गया जी। ये हमारा पूरा टेबल है। इस्तगफरा, यस्तगफिरु, इस्तगफिर, मुस्तगफिरुन, मुस्तगफरुन, इस्तिगफारुन। ठीक हो गया जी। ये उसी तरह से है जैसे हमने अल्लामा, हासबा, अस्लमा, इख्तलफा और आज टेबल कर लिया इस्तगफरा। यानी कि इनके आप देखिए कि 4 जो 3 थे वो एक सेट में आ गए पेश वाले में, और 2 हमारे आ गए जबर वाले मुदारे। अच्छा जी, ऐसा करते हैं कि सिस्टर निघत परवेज आप अस्लमा वाली 6 चाबियां दोहरा लें। जी। अस्लमा, युस्लिमु, अस्लिम, मुस्लिमुन, मुस्लमुन, इस्लामुन। अल्हम्दुलिल्लाह जी। सिस्टर आईफोन आप इख्तलफा। जी। इख्तलफा, यख्तलिफु, इख्तलिफ, मुख्तलिफ, मुख्तलफ, इख्तिलाफ। अब आप अपना हैंड डाउन कर लें। अब है हमारे पास सिस्टर नाहिद। जी सिस्टर नाहिद, आज वाला टेबल 6 चाबियां। जी ठीक है। इस्तगफर, इस्तगफरा, यस्तगफिरु, इस्तगफिर, मुस्तगफिरुन, मुस्तगफरुन, इस्तिगफारुन। इस्तिगफार, अल्हम्दुलिल्लाह। सिस्टर आरिफा और सिस्टर तस्कीन, आप दोनों ग्रुप में सुना सकती हैं ये पूरा टेबल इस्तगफरा वाला? जरा मुझे श्योरिटी कीजिएगा। जी सिस्टर, जी, ग्रुप में आप सुना दोनों देंगे। सिस्टर ग्रुप में सुनाइएगा, ठीक है? अजान जी होने वाली जी है, नमाज के बाद आप दोनों ने ये सुनाना है ग्रुप में। ठीक हो गया जी। बाकी अब सब अपने हैंड डाउन कर लें। जिसकी टर्न नहीं आई बस वो सिर्फ अपना हैंड रेज रखे। जिन 2 सिस्टर को मैंने ग्रुप का कहा वो ग्रुप में बता दीजिएगा, सुना दीजिएगा, ठीक है? अच्छा जी, अब हम कर लेते हैं तुम सब मगफिरत चाहो अल्लाह से। इसको बनाने का आसान तरीका क्या है? पहले फेल को पहचान ले, कौन सा फेल यूज हुआ है? इस्तगफिरुल्लाह, फेल अमर। फेल अमर, हाँ जी, फेले अमर। फेले अमर है, जमा और है। जमा। अच्छा जी, और अल्लाह से हमने तीसरा इसके साथ शामिल करना है, तो क्या हो जाएगा? अस्तगफिरुल्लाह, इस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह, इस्तगफिरुल्लाह। ठीक हो गया जी। इसके बाद है फस्तगफर रब्बहू।
अच्छा जी, फस्तगफर क्या बस बस मगफिरत बस मांग अपने रब से। मांग अपने रब से। चाहो अपने रब ये से। फेल अमर का वाहिद है। रब से। नहीं नहीं, अपने रब से। अच्छा जी, अब हम इसको पहले देखते हैं कि ये कौन सा सीगा है। ठीक है, फा को अलग फेल करेंगे। अमर बस इस्तगफिर रब्बहू। मैम ये रात जबर नहीं है, तो ये कौन सा सीगा? मैं माजी है, माजी। ये माजी है, तो ये माजी हो जाएगा ना। ये माजी माजी है। और एक बात आप मेरी और जरा माजी याद है। रखिएगा, आप इसको अच्छी तरह से याद कर लें। ये हमारा उसमें भी आया था, वो था हासिबू हासिबू अनफुसुकुम, कुछ इस तरह से था। जब हमारा फेल अमर होता है ना, फेल अमर अगर यहाँ पर होता है ना इस्तगफिर, इस्तगफिर, तो ये हम जो फेल अमर, इसमें वो हम कहते हैं सामने वाले को, इसमें क्या छुपा हुआ होता है? इसमें अंता छुपा हुआ होता है। और जब ये अंता छुपा हुआ हो ना, तो फिर ये आ जाना था रब्बू का। जी क्यों? क्योंकि सही, ये हाँ जो जी। का है ये भी तो सामने वाले का ही है ना। अब हम ये तो नहीं कह सकते सामने ना है। कि हाँ तू जी। मगफिरत मांग उसके रब से, अपने रब से मगफिरत मांग। तो इससे ये थोड़ी थोड़ी सही। मगफिरत मांग। हाँ, इसलिए हम कहेंगे इसमें ये जो इस तकफरा है, ये जो पहला वाला, इसमें क्या छुपा हुआ है? हम इस तरफ इशारा, वो हाँ, इसमें इसमें छुपा हाँ हुआ है, छुपा हुआ है। हाँ इसमें हुआ, वो हाँ हम जी, कहते हैं हुआ ना छुपा हुआ है जी, हुआ बिल्कुल। हाँ जी। हूँ। ये बिल्कुल उसी तरह से आप उतार के देखिएगा आज इसको। जैसे आपने मगफिरत मांगी। जैसे हम फाला जी। कहते हैं ना, तो वो हुआ पे आ जाता है। वो सारे उसी तरह से, जैसे हम कहते हैं हुआ, हम, अंता, अना, अंतुम, नहनु। इस्तगफरा, इस्तगफरू, इस्तगफरता, इस्तगफरतु, इस्तगफरतुम, इस्तगफरना। ठीक है, ये सारा पूरा उसी तरह से उतर आता है। ठीक है, इसमें एक हुआ छुपा है। अब जब हुआ वाली बात आएगी ना, तो रब्बुहू, उसका रब, माना इस तरह से बदलते हैं। इसके बाद है हल अंतुम मुस्तगफिरूना मिनल इस्मी, मुस्तगफिरूना, सॉरी मुस्तगफिरूना, ये ठीक था। मुस्तगफिरून फेल मफूल इसम मफरत मफूल मांगेगी, की हाँ, जमा। मफूल हो गया जमा। हाँ अच्छा, जी। हाँ एक और चीज आज आपने चले इसको बोला है ना, आप इसको फेले मफूल नहीं कहेंगे, ये इसम है। इसम मफूल जी, इसम इसम मफूल इसम सॉरी। फाइल है ये। इसम मफूल है। हाँ मफूल, जी। इसम फाइल, ये हम्म वाला इसम फाइल है। हाँ जी, इसम फाइल है। हम्म। और दूसरी चीज इसमें क्या है? ये जमा है, इसम जमा फाइल जी। की ये जमा है। ठीक है, मुस्तगफिरूना। अब इसका हाँ क्या हो जाएगा? इसका हाँ, माना जेर है पहले नीचे, कर। ठीक है। अंतुम के साथ तो ऐसी जमा ही आनी है ना। हाँ जी बिल्कुल। हम्म। नाम नहनु नहनु नस्तगफिरू मिनल इस्म। नस्तगफिरूना। मिनल इस्मी, इसका माना क्या बनेगा? नाम इसम नाहनु कहते हैं क्या गुनाहों को। मुस्तगफिरूना तुम मिनल इस्म। मगफरत हम मांगने वाले मगफरत हो मांगने वाले हैं अपने गुनाहों की मिनल अपने इस्म। गुनाह। हाँ जी, अपने गुनाहों से या गुनाहों ये से। ये मुस्तगफिरून ही आएगा। हाँ जी, ये जो हमारे इसम फाइल, इसम मफूल, ये बदलेंगे नहीं ना। जो माफी मांगने वाला वो वही रहेगा ना, फाइल तो वही रहेगा। ये तब्दीलियां जो आएंगी ना, ये सिर्फ इस वजह से आएंगी जब हमारा हाथ बदलेगा। अभी जब हम इस हाथ से इशारे करें तो कोई तब्दीली नहीं आनी। ठीक हो गया? जी। ये सबका क्लियर हो गया? ये जी हमारा फेल अल्हम्दुलिल्लाह। अमर था। ठीक हो गया जी। इसके बाद ये फेल माजी था, और यहाँ पर हमने अंतुम को बदला है नहनु में। बाकी सारा उसी तरह से आ गया नाम के साथ। अल्हम्दुलिल्लाह, ये भी हमारा हो गया। अच्छा, वर्कबुक सब कर रहे हैं ना? जी मैम तो इसका जवाब होगा तुम का के सिस्टर कर रहे हैं। अना नाम नहनु मुस्तगफिरूना मिनल इस्म। नाम अना मुस्तगफिरूना मिनल इस्म होगा। नहनु। हाँ जी, नाम अगर नहनु वाहिद अंता होता तो मुस्तगफिर ज्यादा होता है। ना। ज्यादा लोग हैं। ये नाम ज्यादा है। नहनु मुस्तगफिरूना मिनल इस्म। अच्छा जी, जज़ाकल्लाह। जज़ाकल्लाह खैर। अच्छा जी, अब आप ऐसा करें कि जो आप वर्कबुक कर रहे हैं ना, मुझे या हफ्सा को आप ऐसा किया करें, 4-4 पेज भेजना शुरू कर दें, ताकि वो साथ साथ चेक होते रहें। जिन्होंने मुझे भेजी है उनकी मैंने कोशिश की थी कि रात को कंप्लीट कर लूं, चेक हो जाए।
तो आप मुझे या हफ्सा को और एक को भेजें, ठीक है? आपने दोनों को नहीं भेजनी, एक को भेजिए ताकि आपका भी टाइम बचे, हमारा भी। नहीं तो वो तो हमें पहले कहते हैं कि एक ही बार एंड में सारी भेजें ताकि कोई एंड पे तो सफे आपने घूमे ना। भेजनी है ना, एंड पे जो भेजनी है वो तो आपकी सबमिट हो जाएगी ना आपके नंबरों में, वो ऐड हो जाएगी, उसको आपको वेटेज जो मिलेगी वो उसमें से मिलेगी। जो आपने अपनी गलतियां निकलवानी है ना वो 4-4 पेज भेजिए ताकि वो साथ साथ पढ़ना हमें भी आसान हो जाए। ठीक हो गया जी? वो इंडिविजुअल हफ्सा को भेजिए। ठीक है। हफ्सा को सिस्टर भी आप चेक करने के बाद वापस ठीक भी है। सर मैं भेजेंगी? पूछ लूंगी अगर कोई नहीं, सिस्टर फायदा है हमारे साथ, सिस्टर विशाल है, व्हाट्सएप पे शेयर करनी है ना। अगर अगर वो लोग चाहेंगे तो उनको भी भेजी जा सकती है, हम आपको बता देंगे, ठीक है? वो एक इंशाल्लाह चलिए ये नोट बना के बताइएगा आप कि भेज हमें देंगे। इसको नाम चेक बता करने के दीजिए बाद किन आप किन को वापस भेजनी है। भेजेंगी? जी हफ्सा हाँ, चेक करने के बाद वापस देंगी हमें ताकि हम करेक्शन कर मैं लें? इसीलिए तो कह रही हूँ ना कि नहीं, अगर व्हाट्सएप 4-4 पे पेज भेजने भेजेंगे हैं। ना तो हम आपको चेक करके भेजते हैं। व्हाट्सएप पे भेजने हैं, वो समझ नहीं, बुक भेजनी है। नहीं व्हाट्सएप पे मैसेज नहीं करेंगे। मैं व्हाट्सएप पे ही पूछ रही हूँ, हाँ व्हाट्सएप व्हाट्सएप पे। पे अच्छा, हमारे नंबर है ना आपके पास, तो आप व्हाट्सएप कर दिया करें, 4 पेज लिखें, पीडीएफ बनाएं, चाहे 4 तस्वीरें भेज दें, वो हमें चेक करना आसान हो जाता है। मैं क्योंकि सिर्फ ये पूछ रही थी कि आप चेक हमारे करने अपने के भी बहुत बाद सारे हमारे काम साथ होते हैं ना, शेयर करेंगी गलतियाँ? हमें बहुत सारे काम मिले हुए होते हैं। जी वो शेयर जी, होती है। ठीक हो गया, वो चलो फायदा तो तभी होगा ना अगर हाँ फीडबैक देंगी तो। हाँ बिल्कुल, ऐसे ये तो देखिए मैंने कहा हमारे अपने भी बहुत सारे काम होते हैं ना, तो ये होता है कि चले फिर अपने कामों के बीच में हम 4-4 पेज तो इजीली चेक कर ही लेंगे इंशाल्लाह। ठीक हो गया? अच्छा जी, ये है इस तकबरा की तरह इस तकबरा, ये जी आपने पूरा टेबल अपने इंशाल्लाह। उसमें कर लेना है होमवर्क में। इस्तकबार जब दो सिस्टर इस तकबरा का टेबल सुना लेंगी तो आज हम ये करेंगे, यहाँ लिखने की बजाय बारी बारी इस तकबरा का टेबल सब लोग सुनाएंगे। ठीक हो गया जी? सिस्टर कोमल का हैंड रेज है, कोई क्वेश्चन है? सिस्टर कोमल जी मैं बोलूं? जी बोलिए। इस्तगफरा, इस्तगफरू, इस्तगफरता, ये इस्तकबर है, सॉरी इस्तकबरा, इस्तकबरा, इस्तकबरू, इस्तकबरता, इस्तकबरतु, इस्तकबरतुम, इस्तकबरना, इस्तकबरत, यस्तकबिरु, यस्तकबिरूना, तस्तकबिरु, अस्तकबिरु, तस्तकबिरूना, नस्तकबिरु, तस्तकबिरु, इस्तकबिर, इस्तकबिरु, ला तस्तकबिर, ला तस्तकबिरु, मुस्तकबिर, मुस्तकबरा, मुस्तकबर, इस्तिकबार। ठीक हो गया जी, अल्हम्दुलिल्लाह। बाकी सब लोग ग्रुप में सुनाएंगे। ठीक हो गया जी? क्योंकि अजान हो गई है तो इंशाल्लाह हम नमाज टाइम पे पढ़ लें। हमारे यहाँ ये जो है ना टेबल इस्तगफारा तक कंप्लीट हुए, अब हमने ये जो तदब्बरा, तदारसा, इनक़लबा, ये जो करने हैं टेबल, इंशाल्लाह इसमें हम देखेंगे कुछ थोड़ी थोड़ी तब्दीलियां होंगी। ये जो 5 टेबल है इनको आपने अलग से पूरे मुकम्मल इसको अच्छी तरह से याद करें, ताकि ये जो हम अगले वीक से पहले नया टेबल करने से पहले ये जो 5 टेबल हैं इन पे हमारा इस तरह से उबूर आ जाए कि इनके हम देखते हैं कि एक जैसे जैसे 3 टेबल के एक जैसे मुदारे हैं, और इनके जो थे फेले अमर सब जेर के साथ थे, और ये जो इस्मुल फाइल, इस्मुल मफऊल, ये सारे के सारे इसी तरह से जेर और जबर के साथ आ गए, और जो हमारे हैं मसादिर वो हमने याद कर लिए हुए हैं इनके नामों से। अब आगे तदब्बरा, तदारसा, इनक़लबा, ये थोड़ी थोड़ी सी तब्दीलियों के साथ आने हैं। तो हम क्या करेंगे, हम ये जो हमारा एक वीक है हमारे पास, इसमें ऐसा कर लें कि डिवाइड कर लें, जो अबवाब आपके पास वो जो लीफ है ना, उसमें से चाहे एक एक टेबल, पूरा पूरा टेबल सब लिखना चाहे लिख लें, सुनाना चाहे सुना लें, जैसे आप लोगों को आसान लगे। फायदा ये हो जाएगा कि अगर आपको चले माना नहीं भी समझ में आए कि ये जो मैं पूरा टेबल लिख रही हूँ उसका माना नहीं आ रहा, तो उसके बावजूद जब आप पूरा टेबल लिख लेंगे इसके सारे सीखे आपको अजबर हो जाएंगे, आपके वो वाले अल्फाज जब इंशाल्लाह कुरान पाक में आएंगे तो आपको साथ साथ समझ में आता जाएगा कि ये जो टेबल था ये इससे इसका रेफरेंस निकल रहा था, ये इसके कोड वर्ड थे, माना तो इंशाल्लाह जो हम तर्जुमा कर रहे हैं साथ साथ उसमें फिर समझ आता ही जाएगा। ठीक हो गया जी? यहाँ पर हम क्लास को कर लेते हैं कंप्लीट। बाकी जितने भी क्वेश्चन है वो आप मुझसे पर्सनल भी पूछ सकते हैं, हफ्सा से पूछ सकते हैं,
या फिर आप ग्रुप में पूछ लीजिए। और जो सिस्टर अक्सा अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी मेहनत से तैयार करती हैं, सिस्टर मनीजा बनाती हैं, जो छोटे छोटे से फॉर्म बना रही होती हैं, तो बड़ी मेहनत लगती है इन चीज़ों पे, उनको भी आप जरूर ट्राई किया करें। असाइनमेंट्स जो होती हैं इससे भी बहुत फायदा हो जाता है। अब हम दुआ कर लेते हैं, अल्लाह ताला से दुआ है कि हमें कुरान को पढ़ने, समझने, गौर करने, अमल करने, फैलाने और याद करने की तौफीक अता फरमा। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दुआओं में याद रखिएगा। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। चलो मुझे मोबाइल